आज के मुख्य स्पीकर डॉक्टर हिरोड़े मैडम, यहाँ उपस्थित डॉक्टर एस.के. नवीन, प्रिंसिपल ऑफ नगीरा कॉलेज, यहाँ बाकी लोग भी प्रेजेंट हैं, हमारे कलीग है नगीरा कॉलेज की फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ। मैं यहाँ सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और ये IPR के ऊपर लास्ट ईयर हमने 2019 एक वेबिनार लिया था ऑफलाइन। इस वेबिनार में मैडम मेन स्पीकर थे और आज भी हमें एक योग आया कि उनको यहाँ हम इन्वाइट करें। तो मैं इस विषय पर हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एस.के. नवीन सर उनको इंट्रोडक्टरी स्पीच के लिए इन्वाइट करते हैं। Thank you so much, Dr. Gode. Good afternoon, everybody. I'm especially thankful and grateful to Dr. Hirwade Madam, who advised me personally and Nagira Mahavidyalaya Katol to have a नवीन सर, the chief speaker नवीन सर, on intellectual property rights. I welcome all my dear colleagues who have attended online and who are attending offline. I'm really thankful to all of them. Dr. Hirwade Madam in the past also made a brilliant presentation offline in the college. And why a seminar of this kind is important, she made us understand. And in today's competitive world, in today's academic scenario, it is very important that we should be all aware of our intellectual property that we have in the form of books, in the form of research papers that we publish in Web of Science, we publish in Google Scholar, and in the form of books also. Well, because of lack of awareness, many a time it happens that we are not aware of our own rights. Dr. Hirwade Madam is the most competent person to throw on the lights of today's webinar, that is on intellectual property rights. I request her most cordially to begin, commence her speech. Thank you very much. Thank you so much, sir. सर आवाज नाही येत आहे. सर तुम्ही अनम्यूट करा. हेलो, येतोय का मॅडम? हो येतो. Okay. So I invite Dr. Mangala Hirwade Madam
to deliver the lecture on the basics of intellectual property rights. मैडम सॉरी टू इंटरप्ट, बस 1 मिनट में सेटिंग्स चेंज करता हूँ सो दैट बाकी लोगों का डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा इन बिटवीन. बस गिव मी 1 मिनट. Shall I share the screen? मैडम हाँ, यू कैन शेयर प्लीज. Ma'am, I have changed the setting. Now you can move ahead, please. Ma'am, am I audible to you? Yes, sir. Ma'am, I have changed the settings. Now you can continue as per your schedule. Good evening, one and all. And today's session is on intellectual property rights, rather the basics or fundamentals of intellectual property rights. I'm going to talk about various facets of IPRs, introduction to IPR, then patents, designs, trademark, geographical indications, and of course about copyright also. I would be also covering the databases regarding IPRs and the concept of biopiracy and traditional knowledge digital library and overall patenting system in India. Okay. I'm having some problem of cough. Okay. So बीच में थोड़ा पानी पीने के लिए रुक जाऊंगी, लेकिन आप सब लोग जुड़े रहिएगा because it is very interesting topic, that is intellectual property rights. देखिए फ्रेंड्स, हम जब कहते हैं इन्वेंशंस के बारे में, यानी जो भी नई चीज आप इन्वेंट करते हो उसके बारे में, तो आप सभी ने ये पिक्चर तो देखा होगा. ये जो पिक्चर है ये हमें याद दिलाता है द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत की. देखिए ये पर्टिकुलर जो वॉर हुआ था उसका लाइव कमेंट्री अंध धृतराष्ट्र जी को संजय नामक व्यक्ति ने सुनाया था. क्या हम यहाँ पे एक जस्ट रिसर्च के दृष्टि से assumption नहीं कर सकते कि yes, the satellite technology was known to the people at that time also. देखिए इस युद्ध में अनेक अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग किया गया, जैसे ब्रह्मास्त्र है, अग्नि अस्त्र है, पर्जन्यास्त्र है. Can't we compare all these astras and shastras with missiles, scuds and atom bombs today? मतलब एक और assumption यहाँ पे आता है कि yes, weapon technology was known to the people at that time also. देखिए आज हम हमारे मेडिकल साइंस पे बहुत गर्व महसूस करते हैं. हमारे मेडिकल साइंसेस में किडनी का प्रत्यारोपण आम हो गया है, घुटने का प्रत्यारोपण आम हो गया है, लिवर का भी है, और अभी तो ग्रीन कॉरिडोर्स हुए जिसमें हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन भी होता है. लेकिन अगर हम देखेंगे हमारी माइथोलॉजी की तरफ में, माइथोलॉजिकल स्टोरीज की तरफ में, तो ये जो केस है गणपति बाप्पा मौर्य, इट इज द केस ऑफ हेड ट्रांसप्लांटेशन. दैट मीन्स हम एक एजम्पशन और कर सकते हैं कि मेडिकल साइंसेस एट दैट टाइम वेर मोर एडवांस देन ऑफ टुडे, राइट. अभी देखिए, God has given brain, imagination and creativity to human being, and Mother Nature has blessed us with physical and biological resources. ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके इंसान ने क्या किया, तो उन्होंने नए नए इन्वेंशंस किए. लेकिन पहले ये इन्वेंशंस जो होते थे वो पब्लिक डोमेन में होते थे, लेकिन आज आपकी क्रिएटिविटी, आपका इन्वेंशन प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास में कानून है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अधिकार, राइट. सो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है वो हमें पता होना आवश्यक होता है.
I'm sorry. Intellectual property is actually the creation of human mind, is the creation of human brain, right? और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट्स होते हैं उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है तो उस प्रॉपर्टी का कोई तो भी ओनर होता है, वैसे ही जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका एक ओनर होता है, राइट, जिसके पास में प्रॉपर्टी सुरक्षित रहती है। अभी देखिए, जब हम आईपीआर की बात करते हैं तो कभी कभी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये शब्द हमें पता नहीं रहते और हम उन सब चीजों को मिस कर देते हैं। अभी ये चित्र में आप देखेंगे कि जिसको आईपीआर का कुछ भी नॉलेज नहीं है वो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है और अगला सिर्फ पटक रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, क्या ना है, पेटेंट माय कॉपीराइटेड ट्रेडमार्क। मतलब यहाँ पे पूरा कंफ्यूजन उसके माइंड में है, उसको पेटेंट की कॉन्सेप्ट पता नहीं है, कॉपीराइट की पता नहीं है, ट्रेडमार्क की भी पता नहीं है। तो ऐसा अपना नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये सब चीजें क्या है वो वन बाय वन हम देखेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ब्रॉडली दो विभाग में बंटी है। पहला है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो सीधा इंडस्ट्री में जाए और वहां पे एक्सप्लोर हो। और दूसरा होता है जब आप स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, तो हमारे रिलेटेड कॉपीराइट। कॉपीराइट किसका होता है? कॉपीराइट एक्चुअली आपकी राइटिंग्स, म्यूजिकल वर्क्स, ड्रामेटिक वर्क्स, ऑडियो विजुअल वर्क्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स, फोटोग्राफिक वर्क्स, आर्किटेक्चरल वर्क्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स, परफॉर्मेंसेस ऑफ द आर्टिस्ट और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी इसमें आते हैं, राइट। तो कोई भी कलाकृति आप बनाते हो, चाहे वो स्कल्पचर रहने दो, पेंटिंग रहने दो या फोटोग्राफ रहने दो, तो उसको आप कॉपीराइट कर सकते हो। इसके लिए दो चीजें जरूरी होती है, वो टैंजिबल फॉर्म में आना चाहिए, यानी मूर्त स्वरूप में वो दिखना चाहिए, और दूसरी चीज होती है कि वो आपका खुद का कलाकृति होना चाहिए। अंडर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वी गेट patents, trademarks, industrial designs and geographical indications। तो ये सब क्या है, इसके बेसिक कंसेप्ट मैं आपको आज बताऊंगी। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा, प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर किसी का अधिकार है। वो अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो वो बनता है आईपीआर। आपके पास में आइडिया है और आप उसको मूर्त स्वरूप में लाते हो। जैसे आपके दिमाग में चल रहा है कि एक रेनी सीजन है, बहुत अच्छे से रेन हो रहा है, तो उस सिचुएशन का फोटोग्राफ अगर आप निकालोगे, उसको एक्सप्रेस करोगे, मूर्त स्वरूप में लाओगे, तो वो कॉपीराइट हो सकता है। आपके पास में आइडिया है और उसमें कुछ नया नॉवेल्टी है और वो इन्वेंशन बन गया है, तो उसके लिए आप पेटेंट क्लेम कर सकते हो। आपके पास आइडिया है और वो आइडिया उसके आइडेंटिटी और क्वालिटी बता रहा है, जैसे सोनी फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है, तो उसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं, इसका मार्केट वैल्यू रहता है। और आपके पास में आइडिया है और आप उसको एक यूनिक शेप के रूप में कुछ चीज बनाते हो, दैट कैन बिकम द डिजाइन। और अगर आपको पेटेंट लेना है तो आपको आपका पूरा इन्वेंशन गवर्नमेंट को देना पड़ता है, उसमें कुछ भी छुपाना नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये इन्वेंशन नहीं देना है तो आप उसको कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स। देखिए, ये एक बाइक है, एक सिंगल बाइक आईपीआर में कैसे प्रोटेक्ट होती है वो हम देखेंगे। देखिए, ये सीट का डिजाइन जो है, दैट कैन बी द मैटर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन। इसके साथ में जो बुकलेट आता है ना, तो दैट कैन बी कॉपीराइटेड। इसका जो एक्चुअली फंक्शन है इंजन का, उसके लिए यूएस का पेटेंट मिला है क्योंकि वो इन्वेंशन है और मार्केट में ये बिकी जाती है टीवीएस के नाम से। सो टीवीएस इज द लोगो ऑफ द कंपनी, दैट इज ट्रेडमार्क। देखिए, कोका
कोका कोला का बॉटल का शेप जो है वो यूनिक है, वो प्रोटेक्टेड है अंडर डिजाइन, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसका पेटेंट नहीं लिया क्योंकि उनको वो फॉर्मूला डिस्क्लोज नहीं करना था, राइट, दैट इज द केस ऑफ ट्रेड सीक्रेट। और इसी प्रकार से फंक्शनिंग ऑफ कैमरा कैन बी पेटेंटेड, निकॉन इज द नेम ऑफ द कंपनी, ट्रेडमार्क, और इसका जो हैंडी लुक है, अट्रैक्टिव और अपीलिंग लुक है, दैट कैन बी इंडस्ट्रियल डिजाइन। अभी देखिए भारत में ये यंत्रणा कैसी चलती है। भारत में ये जो ऑफिस है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में। इसका जो टॉप बॉस है उसको कंट्रोलर जनरल कहते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि पेटेंट और डिजाइन के ऑफिसेस 4 जगह है, कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। ट्रेडमार्क के है 5 जगह, मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड अहमदाबाद। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का एक ही ऑफिस है जो चेन्नई में है। और हमारा पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इकलौता स्पेशल लाइब्रेरी है पेटेंट की इंडिया में, वो नागपुर में है। और अभी पेटेंट्स के डेटाबेसेस बन गए तो ये लाइब्रेरी की उतनी आवश्यकता नहीं रही, इसीलिए उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया है इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर में, और उसको राजीव गांधी का नाम दिया गया है, दैट इज RGNIIPM। तो नागपुर हैज बिकम a hub for intellectual property rights activities। और कॉपीराइट्स का रजिस्ट्रेशन, हमारा कॉपीराइट का ऑफिस न्यू दिल्ली में है, और इसका जो वर्किंग है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंतर्गत। आपको अगर IPR के बारे में अधिकृत इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये वेबसाइट नोट कीजिए, www.ipindia.nic.in। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है पब्लिक सर्च, तो ये लिंक में से आपको पूरे IPR के इंडिया के डेटाबेसेस मिलेंगे, फुल टेक्स्ट। और ये सब आप देखेंगे। अगर आपको कुछ एडवांस कोर्स करना है IPRs में तो आप ये लिंक को देखते रहिए, उनका ट्रेनिंग का शेड्यूल्स इसमें आता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये 5 सालों का स्टैटिस्टिक्स है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एप्लीकेशंस कितने आते हैं, वो नंबर से आपको पता चलेगा। फिर डिजाइन्स के एप्लीकेशंस आप देखिए, और ट्रेडमार्क जो है वो सबसे पॉपुलर है, और उसके लिए लाखों में एप्लीकेशंस हर साल सबमिट होते हैं। अभी हम पेटेंट के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द पेटेंटी, और ये अधिकार के अंतर्गत वो किसी को भी वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, यूज करने के लिए, सेल करने के लिए राइट्स दे सकता है, क्योंकि वो राइट्स गवर्नमेंट ने केवल पेटेंटी को दिए हैं, ठीक है। इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स और ऑथोराइजिंग अदर्स टू डू सो, ये सब जो करने के अधिकार है वो पेटेंट का जो ओनर होता है वो किसी और को दे सकता है, लेकिन उसके लिए अगर वो रॉयल्टी क्लेम करता है, पैसा मांगता है, तो आपको उसको देना पड़ेगा, अदरवाइज आप उस पेटेंट को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। और ये पेटेंट का अधिकार हमारे इंडियन पेटेंट एक्ट के अनुसार 20 साल का होता है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, 20 years। नाउ हमारे जो 4 पेटेंट का ऑफिसेस है, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो इसके लिए स्टेट्स बांट दिए गए। अगर आप नागपुर में रहते हो तो आपको मुंबई पेटेंट ऑफिस में ही फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट। हमारे ये पूरे एक्ट्स एंड रूल्स है जिसके तहत ये पूरी यंत्रणा चलती है। दीज आर ऑल एक्ट्स एंड रूल्स। अभी हम सब एकेडमिशियंस हैं, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स होंगे यहाँ पे, तो हमारे भारत में टॉप 10 संस्थाएं कौन सी है जो ज्यादा से ज्यादा पेटेंटिंग करती है? तो वहां पे देखेंगे आपकी IIT नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, शुलिनी यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी,
then SRM Institute of Science and Technology, then Chandigarh Group of Colleges, Bharat University, then the Indian Institute of Science, then Galgotia University and Lovely Professional University. ये top 10 education institutes है. अभी पेटेंट किसे दिया जाता है? पेटेंट इन्वेंशन को दिया जाता है. और इन्वेंशन का डेफिनेशन क्या है? इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेट एंड केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. मतलब उसमें नया कुछ होना चाहिए, नॉवेल्टी होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए या प्रोसेस होना चाहिए और उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन करते आना चाहिए, तो उसको हम इन्वेंशन कहते हैं. तो पेटेंटेबिलिटी के 3 क्राइटेरिया है, मैं आपको बता दूं. सबसे पहला नॉवेल्टी, जो नई चीज है वो आपको बतानी है, उसमें प्रूव करनी है. दूसरा इनोवेशन, मतलब कोई एक चीज है उसका कुछ इनोवेटिव यूज आपने ढूंढ के निकाला. और तीसरा होता है सोसाइटी के लिए यूजफुलनेस उसका क्या है, राइट. तो ये 3 पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं. अभी मैं आपको नॉवेल्टी के बारे में बता रहा हूँ. देखिए, आप ये फोन देखिए, ओके, ये बहुत पुराना मॉडल है, मेरे पिया गए रंगून वाला. और अभी हम 4G 5G टच स्क्रीन ये सब चीजों में है, आईफोन्स एंड ऑल. तो ये जो टेक्नोलॉजी एडवांस होते गई, हर एक स्टेट में थोड़ा सा नॉवेल्टी ऐड कर दिया उसमें, तो आप पेटेंट क्लेम कर सकते हैं, राइट. इसलिए आप टेलीफोन ये शब्द अगर पेटेंट डेटाबेस में डालेंगे तो आपको हजारों पेटेंट्स जो है वो रिट्रीव होंगे. कोई भी एक यूनिक चीज डाल दी उसमें, यू कैन अप्लाई फॉर पेटेंट, राइट. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कहते हैं. देखिए, 2 साल हमारे कोरोना ने बर्बाद किए, लेकिन जैसे कोरोना आया वैसे वैसे नए इन्वेंशंस भी होते गए. देखिए, लिफ्ट में हम हाथ की उंगली से बटन दबाते हैं, लेकिन एक थाईलैंड का मॉल है, तो उन्होंने ये सब बटन्स जो है वो नीचे पैर से ऑपरेट करने के लिए दिए हैं. हमको सैनिटाइजर तो पता था, लेकिन ये स्टैंड हमारे लिए नया था. दैट इज वन ऑफ द एडिशन, है ना. उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि हम प्रेजेंट देने के लिए थंब लगाते हैं, राइट. लेकिन इन्होंने क्या किया, कॉन्टैक्ट लेंस स्क्रीनिंग मॉड्यूल बनाया. ये IIT मंडी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट से मास्क बनवाए, राइट. तो ये सब इन्वेंशंस ये लॉकडाउन में भी होते रहे. इनोवेशन यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी ओवर हियर इनोवेशन. जैसे हमारा ग्लू स्टिक होता है, वैसे बटर स्टिक नहीं हम इन्वेंट कर सकते. इस इनोवेटिव यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग. देखिए, एक छोटा सा इन्वेंशन था सेफ्टी पिन का, उसके लिए यूएस ने पेटेंट ग्रांट किया 1849 में. वॉल्टर हंट उसका इन्वेंटर था और उसने उस वक्त $400 में उसके राइट्स मार्केट में बेचे कंपनीज को. ओके, अभी आप यूरोपियन पेटेंट डेटाबेस में सेफ्टी पिन ये कीवर्ड्स डालेंगे तो आपको 1126 रिजल्ट्स आएंगे. आप सोचेंगे इतना सा इन्वेंशन है, इसके इतने सारे पेटेंट कैसे लिए गए. आप देखेंगे इस प्रकार से, है ना. दीज आर कॉल्ड डिजाइन पेटेंट्स. वो भी एक कंसेप्ट होता है. देखिए, जो कन्वेंशनल पेटेंट होता है उसका अवधि 20 साल होता है और हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है. ये डिजाइन के लिए जो पेटेंट होता है उसका कालावधि 14 साल का होता है और उसमें हर साल आपको रिन्यू नहीं करना पड़ता. दैट इज द डिफरेंस. जैसे मैंने सेफ्टी पिन का बताई, वैसे ही मोर पुष्पिन कंपनी ने पुष्पिन का पेटेंट लिया था और स्पेसनेट में उसके 187 पेटेंट्स मिले और उसके एग्जांपल्स आप देख सकते हो. दीज आर ऑल डिजाइन पेटेंट्स, राइट. देखिए, ये जो गोकरू बोलतो आपण मराठीमध्ये ना, जे जंगलात गेलो तर हे लागतं आपल्याला, त्याच्यावर ना एका स्वित्झर्लंडच्या
इंजिनियरने त्याच्यावरनं सॉरी अगेन, उन्होंने वेलक्रो का आविष्कार किया, राइट। और आपको सबको पता है, देखिए मैंने आपको कहा पैटेंटेबिलिटी के क्राइटेरिया क्या है, नॉवेल्टी, इनोवेशन, और तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। उसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये बाइसिकल स्टैंड है ना, और ये बाइसिकल स्टैंड है। देखिए ये बाइसिकल स्टैंड में 50% मार्केट स्पेस बच गया, तो इट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वेंशन। इसको भी आप सर्च करेंगे तो पेटेंट मिला है। इससे फार्मास्यूटिकल कंपनीज आजकल टाइम रिलीज टैबलेट पे काम करती है ना, मतलब एक बार खाओ थोड़ी थोड़ी देर में उसके इफेक्ट्स होंगे। तो इस प्रकार के इन्वेंशन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारी फनी चीजें भी है, आपको जस्ट दिखाती हूँ फनी पेटेंट्स। देखिए ये कब का पेटेंट है, 1876 का पेटेंट है, और आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज मुस्टैच गार्ड। इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज पेटेंट फॉर एनिमल ईयर प्रोटेक्टर्स। इसके बाद में आप एक देखेंगे पोर्टेबल बाथ कैप्सूल। ये फनी नहीं है लेकिन ये यूजफुल इन्वेंशन बहुत है पेशेंट्स के लिए जो बेड रिटर्न होते हैं ना उनके लिए। इसके बाद में ये भी एक बहुत ही खास लगा मुझे, बियर अम्ब्रेला। बियर गर्म नहीं होनी चाहिए करके उसको भी अम्ब्रेला लगा दिया, बियर अम्ब्रेला। ये जूनियर जेल, इसको यूएस का पेटेंट मिला है। इसके बच्चे के लिए आरामदायक बेड बना देते हैं और उसको लॉक कर देते हैं, राइट। और ये इन्वेंशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ये एम्ब्रेस इनोवेशन है। इसमें देखिए बच्चा जब प्रीमैच्योर पैदा होता है तो उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं, है ना। तो एक केस स्टडी बताती हूँ। ये जो बच्ची है उसका नाम था आयशा, और उसके मम्मी पापा जो है वो विलेज में रहते थे, राइट। तो वो विलेज में रहने के कारण प्रीमैच्योर बच्चे होते गए और वो उनकी डेथ होते रही। ये तीसरी बच्ची थी, तो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि शहर में हम इसका डिलीवरी करेंगे, राइट। वो शहर के हॉस्पिटल में आए। आयशा का जब जन्म हुआ इस बच्ची का, तो वो केवल 1.1 kg थी। तो उन्होंने कुछ दिन इंक्यूबेटर में रखा उसको, 10 दिन। लेकिन क्या हो गया कि उनके पैसे खत्म हो गए, तो वो इंक्यूबेटर में नहीं रख सकते थे। तो ये जो बॉडी वार्मर था वो काम आया, ठीक है। उन्होंने उसको एम्ब्रेस में शिफ्ट किया और कुछ हफ्तों के अंदर में उसने बेबी ने अच्छा वेट गेन किया और वो अपने घर चली गई। सो इस प्रकार के इनोवेशंस जो है सही में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये उसका पेटेंट है, ओके। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने का ये उपकरण है। देखिए ये भी एक इन्वेंशन है, कॉइन डालो आपको प्रोडक्ट मिलता है, कियोक्स और नट्स। अभी देखिए नॉन पेटेंटेबल क्या होता है, कोई भी जो नेचुरल लॉ है उसके अगेंस्ट में जाके अगर आप कुछ इन्वेंट करते हो तो वो पेटेंटेबल नहीं होता है। चोरी करने के नायाब तरीके पेटेंटेबल नहीं है ना। शालीमार पिक्चर और कोहिनूर हीरा, धर्मेंद्र का पिक्चर था, आपको याद होगा। E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो कॉपीराइट में आते हैं, वो पेटेंट नहीं होता है। उसके बाद में mere arrangement and rearrangement of 2 or 3 technologies cannot be patented। और सबसे बढ़िया चीज है कि ट्रीटमेंट जो होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट, वो पेटेंटेबल नहीं होती है। अदरवाइज जो पेटेंट लेगा वही वो ऑपरेशन करेगा, राइट।
मैथमेटिकल फॉर्मूले, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, एल्गोरिथम्स, ये भी कॉपीराइट का हिस्सा होते हैं, सो पेटेंटिंग उसका नहीं होता। और सब आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, टेलीविजन प्रोडक्ट्स, मल्टीमीडिया प्रोडक्शंस, ये सब कॉपीराइट का हिस्सा है, इसलिए उसको पेटेंटिंग से अलग किया गया है। और जो गेम खेलने के रूल्स, मेथड्स और स्किल होता है, वो हर कोई अपने में प्रैक्टिस करके ला सकता है, तो उसको पेटेंट से अलग कर दिया है। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अगेन इट इज कॉपीराइट, सो पेटेंट नहीं होता, राइट। और एटॉमिक एनर्जी से, जहाँ पे देश की सिक्योरिटी हो, ऐसे कुछ शोध होते हैं, उसको पेटेंट नहीं किया जाता। और प्लांट्स और एनिमल्स ऑन द अर्थ कैन नॉट बी पेटेंटेड। और ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसे हमको को पता है कि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, बच्चा आज भी गिर के आता है तो घर में दादी नानी रहती है, वो हल्दी का लेप लगाती है गरम करके, बिकॉज शी नोज। और जो चीज ऑलरेडी पता है उसको पेटेंट नहीं दिया जाता, क्योंकि नॉवेल्टी आप प्रूव नहीं कर सकते, राइट। तो ये आंवला, लौकी, नीम, ये सब हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है। और मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर और मेथड्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये पेटेंट नहीं होते। ये पूरा प्रोसीजर है अगर आपको पेटेंट लेना है तो, लेकिन इसके डिटेल्स में मैं आज नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रही हूँ। बेसिक्स आई वुड लाइक टू टेल यू। वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आईपीआर में काम करती है। और ये कुछ उनके डेटाबेसेस है, जैसे पेटेंट स्कोप है, ये यूएस का पेटेंट डेटाबेस है। और फार्मर जो अपने खेत में रिसर्च करता है, नए नए हाइब्रिड प्लांट्स ढूंढ के लाता है, राइट, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑफिस है न्यू दिल्ली में, दैट इज प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स। उसके लिए 2001 में ये एक्ट भी बना था, राइट। आप देख सकते हो, ये उसका ऑफिशियल होम पेज है। देखिए, आपके मन में ऐसा कोई, आपके दिमाग में इन्वेंशन है, तो आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज है कि आप उसमें नॉवेल्टी देखो। ऐसा ना हो कि आपने रिसर्च किया है वो ये महाशय जैसा हो, आपने दिन रात रिसर्च किया है, लेकिन आपने अभी 2022 में व्हील का इन्वेंशन किया और कह रहे कि हमको इसके लिए पेटेंट दो। ये तो सदियों पहले व्हील का इन्वेंशन हुआ था, तो ऐसा आपका इन्वेंशन नहीं होना चाहिए। ये पहले तो देखो कि इट इज मी। दूसरा, कोई भी पार्टी शार्टी में बैठ के अपना दिमाग में जो इन्वेंशन है सगे दोस्त के साथ में भी शेयर नहीं करना। कभी ऐसे होता है कि आपने शेयर कर लिया और उसने आपके पहले जाके फाइल कर दिया खुद के नाम पे, ऐसे केसेस हुए हैं। तीसरा, आपको ये पेटेंट लिखते वक्त में ना एक चीज को ध्यान में रखना है, जो चीज करने के लिए ये अड़किता काफी है, उसके लिए इतने बड़े मशीन की आवश्यकता क्या है, राइट। सो सस्ता और अच्छा तरीका जब मार्केट में अवेलेबल है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कुछ इन्वेंशन आप बनाते हो तो उसको पेटेंट नहीं दिया जाता। और यहाँ पे आपको क्लेम लिखने पड़ते हैं कि आपको मोनोपोली राइट्स किस पॉइंट पे चाहिए, इसलिए आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। और एक चीज है, आप पेटेंट ड्राफ्ट करने के लिए वकील की मदद लोगे, अप्लाई करोगे, फीस भरोगे, इतना सब खर्चा करोगे, तो आपका पेटेंट कैसे होना चाहिए? तो फुलसुंग वांगडू जैसा होना चाहिए। बोलता है ना, अरे तू वही वांगुड़ी है जिसके नाम पे 400 पेटेंट है और पूरा जापान जिससे ढूंढ रहा है। आपके इन्वेंशन के लिए डिमांड होनी चाहिए कि हमको दो, हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसके बदले में हम आपको लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। ऐसा आपका इन्वेंशन होना चाहिए। देखिए, ये महाशय ने 3 लेग्स का ट्राउजर बनाया, नॉवेल्टी तो है, लेकिन 3 पैर का आदमी कौन मिलेगा इसको पहनने के लिए, राइट। तो ऐसे इन्वेंशंस नहीं होनी चाहिए जिसकी कोई डिमांड ना हो मार्केट।
और इन्वेंटर को एक चीज ध्यान में होना चाहिए कि हमारी इसकी वैल्यू क्या है, द वैल्यू। मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? यस मैडम, यस मैडम। देखिए रघुनाथ माशेलकर जी जो CSIR के एक CEO है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ITR के क्षेत्र में। उन्होंने कहा भारत में क्या होना चाहिए, कहते चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, वुमन सेंटर्ड फैमिली होनी चाहिए, ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, नॉलेज सेंटर्ड सोसाइटी होनी चाहिए एंड इनोवेशन सेंटर्ड इंडिया होना चाहिए। तो कहते हैं क्रिएटिविटी है, इन्वेंशन होगा, इनोवेशन होगा, पेटेंट भी होगा, लेकिन ये पेटेंट जब तक इंडस्ट्री में नहीं जाता तब तक डेवलपमेंट का साइकिल पूरा नहीं होता। एज इज नो बार फॉर गेटिंग द पेटेंट। 10 साल का बच्चा है, टाइम्स ऑफ इंडिया का कटिंग है, 10 साल का बच्चा है, उसको पेटेंट मिला, फैंटेसी गेम डिवाइस किया उसने। जिनके नाम पर मल्टीपल पेटेंट है उनके कुछ नाम, उसमें से थॉमस एडिसन आपको सबको पता है, तो उनके नाम पे 1093 पेटेंट्स है। जैसे ये देखिए छोटा सा टुकड़ा है ना, ये छोटा सा इन्वेंशन है। ये क्या है पता है? फॉरेन कंट्रीज में जो ब्रेड बिकता है तो उसका जो पैकेट होता है उसको लगाया जाने वाला सील टैग है। छोटे से इन्वेंशन के लिए थोड़ा 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 मॉडिफिकेशन करके इतने सारे पेटेंट्स ले गए, आप देख सकते हो। स्मॉल इन्वेंशन, एक पेटेंट है वो अब्राहम लिंकन के नाम पे है, इसलिए उसको प्रेसिडेंट्स पेटेंट करके कहा गया है। ये पाचोरी वाला है ये व्यक्ति, और उनको अवार्ड मिल रहा है बेस्ट पेटेंट का इंडिया के NRDC न्यू दिल्ली से। उनका इन्वेंशन क्या था? देखिए केमिकल कंपनीज जो थी, वो केमिकल गैलेंस जब जाते थे तो रास्ते में एक माफिया गैंग थी जो उसमें मिलावट करती थी। तो इनको वो चीज ध्यान में आई और उन्होंने वो केमिकल गैलेंस के लिए ऐसे पिलर प्रूफ ढक्कन बनाया जो प्रेशर देने से ऐसे जाके ऐसे लॉक होता है, और उसकी वजह से वो जो स्मगलिंग होता था वो काफी इसमें हद में वो ठीक हो गया। इसलिए उनको उस साल का NRDC का बेस्ट पेटेंट अवार्ड दिया गया। ये देखिए एक छोटी सी चीज है जो आंख के जैसे दिखती है, लेकिन ये बिल्ली की आंख है। इन्वेंशंस कैसे माइंड में आते हैं देखिए। एक गृहस्थ थे, वो रात को अपने घर में गए, दरवाजा खुला, अंधेरा था, एक बिल्ली को दी और उसकी आंखें चमकी। तभी उनके दिमाग में कैट्स आई का इन्वेंशन आया। देखिए कैट्स आई कितना यूजफुल इन्वेंशन है जो रात को रोड जर्नी करते हैं उनके लिए। वैसे देना है तो इनको भी दे सकते हैं, इन्होंने आग का इन्वेंशन किया था, आदि मानव। पेटेंटिंग के लिए एक ही चीज ध्यान में रखना चाहिए कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो फाइल पहले करेगा उसी का क्लेम चलेगा, राइट। इसलिए आपके मन में अगर कोई इन्वेंशन है तो आप उसको जैसे भी होता है लिखिए और फाइल कर दीजिए। आपको एक डेट मिलेगी, वो डेट के बाद में 12 महीने का समय दिया जाता है, इसको प्रोविजनल फाइलिंग कहते हैं। 12 महीने में आप उसको और डेवलप करके 12 महीने के अंदर वो पूरा स्पेसिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। ये सब डेटाबेसेस है, ये यूरोप का डेटाबेस है स्पेसनेट, सभी फ्री अर्ली अवेलेबल है, आप देख सकते हो। स्पेसनेट, ये पेटेंट डॉक्यूमेंट्स है जो दिख रहे हैं। हर देश का अपना एक नेशनल पेटेंट डेटाबेस होता है, इंडिया का भी है, आप देख सकते हो। पब्लिक सर्च में आपको मिलेगा, यहाँ पे पेटेंट्स को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इंडियन पेटेंट का रजिस्टर मिलेगा आपको, उसमें आप सर्च कर सकते हो। पेटेंट डेटाबेस का नाम है इंडियन पेटेंट एडवांस सर्च सिस्टम, और इस प्रकार से आपको वो पेटेंट रिट्रीव होगा। पेटेंट जब भी फाइल होता है कुछ अवधि के बाद उसको पब्लिश किया जाता है।
पेटेंट जर्नल में। पहले गैजेट ऑफ इंडिया में होता था पार्ट 3 सेक्शन 2, लेकिन अभी पेटेंट जर्नल में ऑनलाइन वो पब्लिश होता है, so दैट लोग उसको रीड करते हैं और कहीं ऑब्जेक्शन होगा तो वो आपको बताएंगे। ठीक है, ये फॉर्म्स और फीस हिस्ट्री, ऑनलाइन फाइलिंग, डेटाबेस इंडिया का। ठीक है, तो ये सब पेटेंट के बारे में मैंने आपको बताया। अभी डिजाइन के बारे में बताऊंगी। कोई भी चीज का एक पर्टिकुलर शेप होता है, अट्रैक्टिव शेप होता है, दैट कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर आईपीआर अंडर डिजाइन। और ये जो है ये 10 साल के लिए प्रोटेक्ट होता है। ऑन रिक्वेस्ट 5 साल और आपको मिल सकते हैं प्रोटेक्शन के 15 साल। ठीक है, अभी देखिए इसके लिए एक ही मैं आपको उदाहरण दूंगी तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। देखिए, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, अलग अलग ब्रांड के पीते हो, यहाँ पे आप देखेंगे हर एक ब्रांड के बॉटल का शेप अलग अलग है, क्योंकि डिजाइन में वो प्रोटेक्टेड है। वैसे डिजाइन में सभी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आप चित्र में देख रहे हो, पेन से लेके ब्रश से लेके चप्पल तक, ये डिजाइन होते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के भी डिजाइन अधिकृत होते हैं। टेक्सटाइल्स और ज्वेलरी के भी इंडस्ट्रियल डिजाइन होते हैं। जैसे कोल्हापुरी साज है, कोल्हापुरी साज जियोग्राफिकल इंडिकेशन में भी आता है। देखिए, टूथब्रश की कुछ डिजाइन मैंने लाई है, इसका भी अपने पास में इंडियन डिजाइन का डेटाबेस है, और यहाँ पे आप सर्च करके जो रजिस्टर्ड डिजाइन है वो देख सकते हो। अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आईपीआर के फैसेट पे आ रही हूँ, दैट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? इट इज अ विजुअल सिंबल इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड, डिवाइस और लेबल applied to articles of commerce as distinguished from similar goods manufactured or dealt in by others. देखिए, अगर आप आंख बंद करेंगे और गोदरेज शब्द का उच्चारण करेंगे तो आपको गोदरेज का जी ऐसा कर्सिव ही मिलेगा, सिंपल नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सालों से वो गोदरेज का लोगो देखते आए हैं, राइट? आप यहाँ पे देखेंगे आपके सामने जी ऐसे ही आएगा। दैट इज एक्चुअली द इम्पैक्ट ऑफ दैट ब्रांड ऑन आवर माइंड, राइट? तो कुछ ट्रेडमार्क्स लेटर्स और वर्ड्स यूज करके बनाए जाते हैं, उसमें कॉम्बिनेशन होता है, जैसे लोगो होता है, वर्ड्स होता है, ग्राफिक्स होता है। देखिए, नागपुर में मूनलाइट फोटो स्टूडियो, उन्होंने वहां पे स्टिल लेटर्स लगाए हैं, मैसेज, इफ यू आर नॉट ब्यूटीफुल वी विल मेक यू ब्यूटीफुल, इफ यू आर ब्यूटीफुल वी विल कैप्चर योर ब्यूटी। तो ये ट्रेडमार्क्स के साथ में कभी कभी पंच लाइन्स होती है। तो कुछ पॉपुलर पंच लाइन्स मैं आपको बताती हूँ। लाइफ इज गुड, इट इज एलजी, इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं, इट इज बिग बाजार, कनेक्टिंग पीपल, इट वाज नोकिया, द वर्ल्ड्स लोकल बैंक, HSBC, देन अच्छा लगता है, इट इज क्लब HP, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनियरिंग, इट इज L&T, जाओ तो जानो ट्रूली एशिया, ये है मलेशिया टूरिज्म, और टेस्ट भी हेल्थ भी, इट इज मैगी नूडल्स, इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला, प्योर फॉर श्योर। ये पूरे जो है पंच लाइन्स है, आई एम लविंग इट। ठीक है, कुछ पिक्चर्स और ड्राइंग्स का भी इस्तेमाल होता है, जैसे MSN बटरफ्लाई। ये लोगो जो है ये बहुत फेमस लोगो है, एप्पल कंप्यूटर्स। एप्पल और कंप्यूटर का कोई संबंध नहीं वैसे, लेकिन बहुत क्रिएटिव माना जाता है ये लोगो। साउंड ट्रेडमार्क भी होता है, जैसे ये बाइक का जो है ट्रेडमार्क, उसमें साउंड भी दिया है, सिंह गर्जना, राइट? तो सब ट्रेडमार्क का ही है, लेकिन स्वरूप बदल जाता है। ठीक है, वही प्रोटेक्शन पीरियड रहता है। ये ट्रेडमार्क ऐसा है कि आपको 15 साल के लिए मिलता है, और 15 साल के बाद में आप हर 5 साल के बाद उसको रिन्यू कर सकते हो, generations to generations, and that is why it is of market value। और दूसरी चीज, वो सबसे वैल्यूएबल IPR है। देखिए, साउंड मार्क्स में जब हम विंडो ओपन करते हैं तो एक क्लियर साउंड आता है, वो माइक्रोसॉफ्ट ने
उसका साउंड ट्रेडमार्क करवाया है। ये कुछ टीवी चैनल्स के, न्यूज चैनल्स के। देखिए, अगर आप रेल में जर्नी करते हो और ऐसी बॉटल आपको कोई ऑफर करता है 5 रुपए में, शुद्ध मिनरल वाटर, आप लेंगे नहीं, लेकिन ये बॉटल के लिए आप 20 रुपए देंगे। दैट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ ब्रांड। बिस्लेरी है, अभी ये ट्रेडमार्क जो एस्टैब्लिश ट्रेडमार्क है सालों से, उनका एक ऑप्शन किया गया था, पुराना सर्वे है ये, लेकिन सबसे ज्यादा बोली कोका कोला की लगाई गई थी, 68.9 बिलियन डॉलर्स, राइट। आप यहाँ पे देखेंगे टॉप 4। बिस्लेरी हम क्यों प्रिफर करते हैं? इंटरनेशनल कंपनी है और सबसे बड़ी चीज हमको उस पर विश्वास है, राइट। विश्वास की बात है। देखिए, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो होता है, तो अगर कोई कॉपी करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे वैसे इंफ्रिंजमेंट्स होते हैं। देखिए, adidas अभी बात करते हैं। आउटलुक सेम रेड एंड व्हाइट, ये देवनागरी में आउटलुक। हमको क्या लगता है कि अरे ये आउटलुक का ये हिंदी वर्जन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो ये इंफ्रिंजमेंट है। हम सुबह से लेके रात को सोने तक वी यूज ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स। इसलिए आपको पता होगा कि ट्रेडमार्क हमारा जीवन का हिस्सा बना है। ठीक है, ये पढ़ते जाइए और आनंद लेते जाइए। समझ में आया? सुबह Yes, 6 ma'am. बजे से रात को 10 बजे तक। ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के मार्क्स है। देखिए, DTDC जो है इज कॉल्ड एज नॉट ट्रेडमार्क बट इट इज सर्विस मार्क। ट्रेडमार्क का ही टाइप है, बट इट इज कॉल्ड एज सर्विस मार्क, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपको सर्विस देते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है। ISI का टप्पा लग गया तो इट इज सर्टिफिकेशन मार्क। के बाद जितनी क्वालिटी डिमांड की गई थी उतनी क्वालिटी करके ISI का टप्पा लगता है। इससे मर्सिडीज, सेंचुरीज से जो चलते आ रहा है ब्रांड, उसको वेल नोन मार्क कहते हैं। जैसे लॉन्ड्रीज है, एयरलाइंस है। देखिए, किंगफिशर एक था, किंगफिशर का उड़ानों वाला जो था वो सर्विस मार्क था, लेकिन उनका और एक प्रोडक्ट है, आपको पता होगा वो प्रोडक्ट, तो वो ट्रेडमार्क में आता है, राइट। जैसे कि मैंने कहा कि इनिशियली 10 इयर्स का आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, फिर 5 साल बढ़ाओ, फिर 5 साल बढ़ाओ, और 5 साल बाद आपको रिन्यूअल फीस पे करके उसको जीवित रखना है। फेक प्रोडक्ट्स कैसे आते देखिए, वैसलीन ये ओरिजिनल है, ओके, लेकिन मार्केट में सेम डिब्बी का कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा वैसल, न्यू वैसोलाइन, न्यू लाइन वैसोलाइन, ना, तो कॉम्बिनेशन सेम रहेगा, और इस प्रकार से आप ठगे जाते हो फेक प्रोडक्ट से। उसके बाद में एक लैक्मी का केस हुआ था। सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली दूसरी एक कंपनी ने उसका ब्रांड का नाम लिखा लाइकमी। लैक्मी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। वो कोर्ट में गया और कोर्ट ने बताया कि दोनों के उच्चारण में रिजेम्बलेंस है, फोनेटिकली सिमिलर है, तो यूजर्स को वो मिसगाइड कर सकता है। लैक्मी केस जीत गया, वो कंपनी बंद हो गई। वैसे कोलगेट की हुई थी, दूसरे कंपनी ने सेम डेंटल क्रीम बनाया, वही रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन यूज किया कोलगेट का, और नाम दिया कोलिजिएट, उसका भी वही निकल लगा। ठीक है, ये ट्रेडमार्क का पेज है हमारी वेबसाइट का, आप देख सकते हो, इसका रजिस्टर भी देख सकते हो। जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स है, इस प्रकार से सर्च करके देखिए, ये ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट है। these databases are searchable, right? उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडमार्क का वाइपो मेंटेन करती है मैट्रिक डेटाबेस। इसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट शब्द डाला, माइक्रोसॉफ्ट के 85 ट्रेडमार्क्स है, इससे तो आप वाकिफ हो गए।
अभी दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर उसके जियोग्राफिकल लोकेशन से पहचाना जाता है, फेमस है, तो उसको भी हम कर सकते हैं आईपीएल्स में। देखिए हमारे पास में बासमती राइस है, भारत पाकिस्तान को ही उसका वरदान है कि इसी क्लाइमेट में बासमती राइस बनता है। लेकिन बासमती राइस की कंट्रोवर्सी हुई थी। बासमती राइस का पेटेंट लिया गया था यूएस में टेक्समती के नाम से, और वो बासमती को वापस लाने के लिए हमको बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। तब हमने सोचा कि ये जियोग्राफिकल इंडिकेशंस में हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उस वक्त हमारे पास में पेटेंट एक्ट के अनुसार प्रोसेस ही पेटेंट होती थी, प्रोडक्ट पेटेंट नहीं होता था। तो हमने इस ऑफिस की स्थापना की 2001-2002 में। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के फेमस उदाहरण जो है वो नागपुर का संतरा, कोल्हापुरी चप्पल, दार्जिलिंग टी, चंदेरी साड़ी, मैसूर रोजवुड एंट्री, देन कोल्हापुरी चप्पल, उसके बाद में सोलापुर चद्दर, कुल्लू की शॉल, मैसूर सैंडल सोप। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में बासमती और नेल्लोर राइस, पंजाब और एमपी का गेहूं, कुर्ग ऑरेंज, हापुस आंबा, नागपुर ऑरेंज, अल्फांसो का अभी भी हो गया है रजिस्ट्रेशन। देन टेक्सटाइल्स में कांचीपुरम साड़ी, कोटा डोरिया, पोचमपल्ली कैट, दिस इज कोटा डोरिया, फेमस फैब्रिक, चंदेरी साड़ी, मैसूर सिल्क, अचानक से वेबिनार आ कांचीपुरम गया। साड़ी। हेलो, सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, बीकानेरी भुजिया, आगरे का पेठा, कुर्ग ऑरेंज, ये नांजाना गुड़ का बनाना, कांगड़ा टी, दार्जिलिंग टी, मैसूर अगरबत्ती, मैसूर सैंडल सोप, ये स्पेशल मेटल मिरर है, अरानमुला का नहीं। चन्नापटना गांव का नाम है, चन्नापटना टॉयज। देन मैसूर का ये रोजवुड इडली, ये कोयम्बतूर का वेट ब्रांड है, ये बालाजी का लड्डू तिरुपति का। और वाइन्स एंड स्पिरिट्स में यू कैन सी गोवा की फेनी, शैंपेन जगह का नाम है, स्कॉटलैंड की विस्की, ये सब चीजें। हमारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन का ऑफिस चेन्नई में सिचुएटेड है। यहाँ से आप उसको रजिस्टर्ड जीआईएस देख सकते हो। ये यहाँ से इस प्रकार से लिस्ट और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। और साउथ इंडियन स्टेट्स जो है ज्यादा प्रगत है इसमें। और आप देखेंगे कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये जीआईएस 4 क्षेत्र में होते हैं, एग्रीकल्चरल, हैंडीक्राफ्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड और फूड स्टफ्स। ये एग्रीकल्चर जीआईएस के उदाहरण, दिस इज पालक का दन, मट्टा राइस, मैसूर बीटल लीफ, देन जैस्मीन, मोगरा, मोगरे में आप देखेंगे मैसूर, उडुपी एंड हड़ागली। इलायची में अलेपी एंड कुर्ग, ये नागा का मिर्चा। और आम का सीजन अभी चल रहा है, आप देखेंगे वेस्ट बंगाल के 3 जो है उसका जीआई हो गया है, लक्ष्मण भोग, सीसापति और फाजली मालदा का, और दशहरी यूपी का है। इस प्रकार से ये कुछ एग्रीकल्चरल है। और महाराष्ट्र से आपको पता है महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, पैठणची येवला पैठणी, कोल्हापुरी सास, देन कहाँ की है ये, लोनावला की चिक्की, नागपुर का संतरा, भुसावल का केला, नासिक के अंगूर, ये पुनेरी पगड़ी, ये सब हो चुके हैं। जब भी अप्लाई करते हैं, ये कोई इंडिविजुअल अप्लाई नहीं कर सकता, संस्था के मार्फत करना पड़ता, तो उसको ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने के लिए ये जर्नल में छापा जाता है। देखिए ये कुछ रजिस्टर्ड जीआईस है, आप यहाँ पे जस्ट एक लुक लेंगे। रजिस्टर्ड, ये मैसूर सिल्क है, इज रजिस्टर्ड, इस प्रकार से होता है जीआई लेवल। ये फेनी का एप्लीकेशन पड़ा हुआ है अंडर एग्जामिनेशन 120। ये पेंडिंग है बासमती राइस, जिसके लिए हमने इतना सब किया वो अभी भी पेंडिंग है, अल्फांसो का हो गया है, राइट।
या हैदराबादी बिरयानी, इसका एग्जामिनेशन स्टेटस है। एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड, देखिए अपना देश सुजलाम सुफलाम है और हमारा जो मेडिकल साइंस है वो बहुत प्रगत है, उसमें भी आयुर्वेदा बहुत ज्यादा प्रगत है। और हमारे यहाँ पे एंशियंट स्क्रिप्चर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, जैसे 4 वेद है, 108 उपनिषद है, 2 एपिक्स है, हमारे धर्म ग्रंथ है जैसे भगवत गीता है, पुराण है, देन ब्रह्म सूत्रास है, हमारे यहाँ पे 18 पुराण है, मनुस्मृति, कौटिल्य शास्त्र स्मृति, ये सब हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स है। और आप एक चीज नोट करेंगे, हमारा फ्लोरा और फौना बहुत समृद्ध है और पूरे वर्ल्ड पे, पृथ्वी पे 26 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, उसमें से 16 भारत देश में ना। सुजलाम सुफलाम अपना देश होने के बाद में भी हमारे पास में जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ठीक से डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है। कभी कभी किसी किसी को स्थिति होती है, जैसे जॉन्डिस हो गया तो उसको उतारने का काम, कोई मलम लगा देता है, फ्रैक्चर ठीक हो जाता है, राइट। तो ये सब कुछ फॉर्मूले पता होते हैं, वो आदमी शेयर नहीं करता, उसके साथ साथ वो सब सिद्धियां चली जाती है। तो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज रिच है, लेकिन हमने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। देखिए हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो आयुष से बना है, ये फॉर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, है ना। उसमें हमारे पास में मेडिसिनल प्लांट्स है, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स है हमारे पास में, और उसका यूज क्या है ये सब हमारे पूर्वजों से हम लोगों को पता है, जनरेशन की जनरेशन। लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना है कहीं पे, ये काम हुआ नहीं, तो बायोपायरेसी बढ़ती गई। बायोपायरेसी का मतलब क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो अवेयर नहीं है आईपीआर से, उनका ट्रेडिशनल नॉलेज चुरा के अपने देश में प्रोटेक्ट करना। ये यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, इन्होंने ये काम करना शुरू किया। और आप देखेंगे कि 2002 में केवल हमारे 7 प्लांट्स का उल्लेख उनके पेटेंट्स में था, 2004 में 15,000 हो गया और 2005 में 35,000 हो गया। आए दिन न्यूज आती थी उस ड्यूरेशन में कि आळा गेला, हिरडा गेला, बाबूळ गेलं, नीम गेला, हळदी गेली। गेली म्हणजे काय, त्या लोकांनी त्याचे राइट्स प्रोटेक्ट केले। सबसे बड़ा कांड हुआ था ये हल्दी का, जो जिनके पूर्वज इंडियंस थे, ऐसे 2 लोग, सुमंत दास एंड हरिहर कोली, इन्होंने 1995 में यूएस पेटेंट ऑफिस को हल्दी का पेटेंट दिया फॉर एंटीसेप्टिक यूज ऑफ हल्दी। यूएस पेटेंट ऑफिस ने उसको ग्रांट भी किया वुंड हीलिंग के लिए, उसका एंटीसेप्टिक यूज। ये पेटेंट आया, वैसे हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को हल्दी का यूज करने के लिए मेडिसिन में बंधन आ गया, क्योंकि राइट्स उनके पास चले गए। इसके लिए मार्शलकर सर के अंडर में एक टीम बनी और सीएसआईआर ने एक केस लड़ी और उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ दिए जिसमें हल्दी एंटीसेप्टिक है करके लिखा था 1995 के पहले। मतलब नॉवेल्टी क्राइटेरिया उसका पूरा नहीं होता, तो उसमें से उन्होंने 32 ऐसे एविडेंसेस दिए कोर्ट में। इसमें से एक ये है, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ तो भी लिखा है, ये 1879 का है, ये दूसरा है। तो इसका ट्रांसलेशन बताती हूँ। जो पहला था उसका है, हल्दी पाउडर टेकन डायरेक्टली एज ब्लड प्यूरिफायर क्योर्स जॉन्डिस, यहाँ पे लिखा है वुंड हीलिंग। तो कब लिखा गया है? 1879 में। किसने लिखा? मौलवी करीम ने लिखा, राइट। मतलब जब पेटेंट दिया तो उसमें नॉवेल्टी क्या रही, ये तो हमको सदियों से पता है, राइट। ऐसे ही दूसरा था हल्दी, ये देखिए एंटीसेप्टिक वुंड हीलिंग, लिखा गया 1867 में, मोहम्मद अब्दुल सत्तार ने लिख के रखा है। तो ये ऐसे 32 प्रूफ्स देने के बाद में हल्दी वापस आ गई। ऑल द क्लेम्स वेर कैंसल्ड, पेटेंट वाज रिवोक्ड। लेकिन ऐसा कितना ट्रेडिशनल नॉलेज हमारा गया, नीम के कितने सारे पेटेंट्स आपको दिखेंगे, राइट। तो इसको कर्टल डाउन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेप लिया और वो स्टेप था, उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज की डिजिटल लाइब्रेरी बनाई। उन्होंने क्या किया,
आयुर्वेदा के 75 क्लासिक बुक्स जिसमें फंडामेंटल नॉलेज है, यूनानी के 10 बुक्स, सिद्धा के 50, योगा के 13, ऐसे बुक्स एक्सपर्ट्स को दिए और उनको कहा कि जहां जहां लाइन बाय लाइन पढ़ो, जहां जहां मेडिसिनल प्लांट का उल्लेख आता है उसकी एक एक एंट्री बनाओ। वो एंट्री बनाई और उन्होंने ये टीकेडीएल में पब्लिश कर दी। ओके, और इसकी सीडी, उसका एक्सेस सभी पेटेंट ऑफिसर्स को दिया और उन्होंने कहा दिस इज अवर डिस्क्लोज ट्रेडिशनल नॉलेज। अब जब भी पेटेंट ग्रांट करोगे, एग्जामिनेशन करोगे, तब आपको इसको चेक करना है, इसमें उल्लेख होगा तो यू कैन नॉट ग्रांट द पेटेंट। और ऐसा अपना ट्रेडिशनल नॉलेज डिस्क्लोज करने वाला इंडिया पहला देश था इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये डिजिटल लाइब्रेरी है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। और आप एक चीज को ध्यान करेंगे कि ये जब से बनी तब से ये सब पेटेंट ऑफिसेस ने जो पेटेंट ग्रांट किए थे वो वापस किए, कुछ कैंसिल किए, तो ये बेनिफिट हुआ है। छोटा सा केस स्टडी बता के रुक जाऊंगी। केरला में ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है जनरली ट्राइबल पीपल के पास में होता है। केरला में एक कम्युनिटी है कानी ट्राइब करके। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर से एक साइंटिस्ट थे पुष्पगदन, वो केरला के जंगलों में अपनी टीम लेके गए एक्सकर्शन के लिए। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ की जो कानी ट्राइब थी उनके 2-3 लोगों को साथ में लिया रास्ता दिखाने के लिए। तो थोड़ी देर के बाद में उनको भूख लगी, वो अपना खाना खाने लग गए। पुष्पगदन एंड टीम, उन्होंने फूड ऑफर किया वो कानी मैन को, लेकिन उन्होंने नहीं बोला और वो एक पेड़ के पास गए और उसके फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स के जैसे निकाल के खा लिए। तो ऐसा 2-3 बार हुआ। तो ये साइंटिस्ट ने उनसे सैंपल मांगा, तो वो बोले कि ये खाने के बाद में हमको भूख नहीं लगती, हमको फ्रेश लगता। इन्होंने सैंपल लेके गए J&K में और उसको एनालाइज किया, तो उनको उसमें 3 प्रॉपर्टीज दिखी। एक एंटीफेटिक थी, फिर टॉनिक था उसमें और रिफ्रेशिंग था। तो उसके लिए 3 पेटेंट अप्लाई किए, पेटेंट मिले। पेटेंट मिलने के बाद में वो पेटेंट उन्होंने इंडस्ट्री को दिया। ठीक है, इंडस्ट्री ने जीवनी नाम का प्रोडक्ट बनाया। ये प्रोडक्ट च्यवनप्राश के जैसा है, टॉनिक है, ये शक्तिवर्धक एंटीबायोटिक। वो आया मार्केट में, बहुत फायदा हो गया प्रोडक्ट बनाने वाले का और जिसने इन्वेंट किया उसका। लेकिन व्हाट अबाउट कानी ट्राइब? तो केरला के एक एनजीओ ने ये चीज जो है वो केरला गवर्नमेंट के ध्यान में लाई और केरला गवर्नमेंट ने उसको अच्छे से फॉलो किया और अभी उनको एक लमसम अमाउंट दिया गया था 6,50,000 का कानी ट्राइब को। और उसके बाद में रेगुलरली जितना प्रॉफिट होता है उसमें से 50% हिस्सा रॉयल्टी के तौर पे कानी ट्राइब को मिलता है। और वो मदद की वजह से, वो ट्रेडिशनल नॉलेज की वजह से, पहले उनके घर ऐसे थे, अभी वो पक्के घरों में रहते हैं कानी ट्राइब्स। उसके बाद में पहले उनकी लिविंग कंडीशन ऐसी थी, अभी वो ऐसे रहते हैं। So friends, this is actually IPR and its application to the society. I would like to stop over here and thank you so much for your patient hearing. And I think the basic concept is clear to you now. इंगोले सर, Yes. हाँ sir. इंगोले सर वीडियो चालू करेंगे वो हाँ सर। Yes. हाँ कर रहा हूँ sir. So we are very thankful to Dr. Mangala Hirode madam who accept our invitation for delivering the lecture on the basics of intellectual property rights in short period.
Thank you very much, madam. I am Thank you, sir. thankful to our principal, Dr. S.K. Naveen sir, who support us to organize this webinar and provide necessary infrastructure. I also thankful to all my colleagues, especially Dr. Puneet Raut and Dr. Sachin Bade, and also Adil Jiwani sir, who support me for the success of this seminar. I am also thankful to all the participants who joined us offline and online. Thank you. Thanks to all. Thank you.